Okay. So, good morning. Am I audible? শুনতে পাচ্ছ তো? Yes, ma'am. So, let us start. See, so this is our new topic, okay? Flexible pavement design, it is completed. Now we are starting rigid pavement design, okay? So, in rigid pavement, most important topic is what? Stress, okay? For designing the pavement, we must understand what are the stresses that are developed in the pavement. Okay, so the important topic under this pavement design, rigid pavement design, are stresses in pavement and design of joints in rigid pavement. Okay, based on this stress we have to design the thickness of the slab. See here, rigid pavement means what? The topmost surface will be composed of slab. Okay, so we have to design the thickness of this slab. Basically in rigid pavement design means we have to design the thickness of the slab. Okay, and it is based on the several stresses which will be developed on this slab due to wheel load. Not only due to wheel load, it may occur due to temperature also. So there are two factors, important criteria, depending upon which your stresses will be developed on the slab. That is due to loading की वजह से तो आएगा स्ट्रेस के इसके ऊपर stresses. Okay, and also due to temperature. क्यों? We will see, and how it is developed we will also see. Based on the temperature, there are two types of the stresses which will be developed in this slab. Okay, तो वो क्या क्या है ये भी हम describe करेंगे. As we all know that slab is what it this rigid pavement is what it is constituted or it is combined of the several slab joined together. देखो यहाँ पे एक slab है, ये वाला एक slab है, वैसे ही वहाँ पे भी along the direction of the traffic और एक slab रहेगा. ठीक है, ऐसे पूरा slab होता जाएगा, ऐसे slab. ठीक है, वैसे इस वाले में भी वही slab है, ऐसा करके बढ़ता जाएगा. ओके, so these are what? These are the all the slabs joined together. Okay, so it is not a continuous structure. Okay, ये continuous structure नहीं है. अगर continuous होता तो क्या होता? Length of the slab will be very huge. बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा length का हमको रास्ता तो सिर्फ 1 मीटर 2 मीटर का नहीं होता, right? It will be of many stretches, many kilometer stretches. तो इतना किलोमीटर के लिए एक ही slab हम construct करेंगे? No, we will develop, we will construct several slabs, then we will join together. अब देखो, whenever there is a joint, देखो यहाँ पे क्या होता है? Joint का मतलब है there will be gap. Okay, एक स्लैब, दिस इज नॉट अ कंटिन्यूस स्ट्रक्चर, ये डिसकंटिन्यूस स्ट्रक्चर है. तो जहां जहां पे डिसकंटिन्यूटी आ रहा है वहां पे क्या होगा? गैप डेवलप होता है, एंड दैट गैप्स आर नोन एज द जॉइंट्स. ओके, सो ये जॉइंट किस डायरेक्शन है, मतलब इट इज इन विच डायरेक्शन, वेदर इट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक और इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक. ठीक है, ये जो जॉइंट दिखाई दे रहा है ये वाला डायरेक्शन के पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है? पहले ये बोलो. ये जो रेड कलर का जॉइंट, सिमिलरली यहाँ पे भी एक जॉइंट होगा क्योंकि वहां से और एक स्लैब स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो ये जो रेड कलर का स्लैब है इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक, और सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक. ठीक है, और इट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक. बोलो तो ये रेड कलर का जॉइंट ये किस डायरेक्शन में प्लेस किया हुआ है? This red line, it is perpendicular to the traffic or parallel to the traffic, direction of the traffic? Perpendicular. Perpendicular, right? This joint is perpendicular. गाड़ी इसके ऊपर से होके जाएगा. ठीक है, so गाड़ी का direction अगर इस तरफ है, so this line or this joint is what? It is perpendicular to the direction of the traffic. ठीक है, and ये वाला क्या है? It is a transverse section भी हम बोल सकते हैं. अगर यहाँ से तुम अगर ब्लेड लेकर ये इसको काटोगे, रास्ते को काटोगे along this line, so we will get a transverse section which is this one. ये जो transverse, यहाँ पे भी तो एक जॉइंट होता था. ठीक है, यहाँ पे भी तो एक जॉइंट था, यहाँ पे भी तो एक जॉइंट था. ठीक है, इस जॉइंट के में हमने एक स्लाइस काटा है. ठीक है, देन व्हाट वी आर सीइंग? वी आर सीइंग ए
ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है, क्रॉस सेक्शन हमको दिखाई दे रहा है स्लैब का, राइट। सो इस वाले जॉइंट को हम बोल सकते हैं ट्रांसवर्स जॉइंट। ओके, नाउ देयर इज अनदर जॉइंट, सपोज हम बोलेंगे ये पिंक कलर का जॉइंट, ये भी तो एक जॉइंट है, सॉरी, दिस इज ऑल्सो अ जॉइंट, ठीक है, ये भी तो जॉइंट है, यहाँ पे भी तो गैप्स है, यहाँ पे दो स्लैब जहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे दो स्लैब मिल रहा है, यहाँ पे गैप है। नाउ टेल मी दिस जॉइंट is what, perpendicular to the direction or parallel to the direction of the traffic? यहाँ पे एक जॉइंट होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी वही जॉइंट होगा, वैसे यहाँ पे भी वही जॉइंट है। तो ये जो पिंक कलर का जॉइंट है, ये देखो ये क्या है, पैरेलल है कि पैरेलल। परपेंडिकुलर? पैरेलल, राइट। अब तुम यहाँ से अगर ये स्लाइस काटोगे, ये वाला अगर तुम काटोगे, इसमें छुरी रखकर इधर से अगर तुम काटोगे, वी आर गेटिंग दी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। यहाँ पे देखो हमने एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हमको मिल रहा है, दिस सेक्शन इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, राइट। तो ये जॉइंट को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स। ओके, मतलब ये जो पिंक कलर का जो भी है, दिस आर द लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, एंड जो रेड कलर का है, दिस आर द ट्रांसवर्स जॉइंट। सो वी हैव टू डिजाइन दिस जॉइंट। जॉइंट डिजाइन करने का मतलब है क्या, हमको स्पेसिंग डिजाइन करना है। अगर बोलेगा ट्रांसवर्स जॉइंट डिजाइन करो, दैट मीन्स स्पेसिंग कितना है, मतलब कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये जॉइंट और ये जॉइंट कितना दूर दूर में प्लेस किया गया है, एंड दिस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द स्लैब, ठीक है। तो ये है लॉन्गिट्यूडनल या सॉरी ट्रांसवर्स जॉइंट का स्पेसिंग इज व्हाट, इट इज द लेंथ ऑफ द स्लैब, ठीक है। और ये जो ट्रांसवर्स जॉइंट है, ट्रांसवर्स जॉइंट का भी हमको स्पेसिंग जनरली डिजाइन कर भी सकते हो, लेकिन ये ट्रांसवर्स जॉइंट का हमको स्पेसिंग पता रहना चाहिए, एक लेन होना चाहिए, ओके, विच इज 3.5, ठीक है। तो मेनली जॉइंट का डिजाइन आता है, मतलब क्या है, मेनली आता है ट्रांसवर्स जॉइंट का डिजाइन। ओके, ट्रांसवर्स जॉइंट का डिजाइन मतलब लेंथ ऑफ द स्लैब, ठीक है। और ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट का स्पेसिंग मतलब कितना है, स्पेसिंग मतलब है ये 3.5, एक एक लेन विथ गैप होना चाहिए 3.5 करके। ओके, सो ये जॉइंट्स आता है। अब देखो जहां जहां पे तुम्हारा जॉइंट्स है, दोज आर वीक इन स्ट्रक्चर। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे कोई कॉन्क्रीट नहीं है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे भी गैप होगा, फिर दूसरा स्लैब स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से भी गैप है, फिर दूसरा स्लैब स्टार्ट हो रहा है। सो दिस जॉइंट्स आर बेसिकली गैप इज प्रेजेंट देयर। ओके, सो वो एक वहाँ पे हमको क्या बोले, सपोर्टिंग कुछ स्ट्रक्चर वहाँ पे हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो गैप्स में क्या हो जाता है, एक स्लैब में जो गाड़ी जा रहा है, अगर वो गैप से होकर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सो दिस आर वीक इन स्ट्रक्चर, राइट। ये जो गैप्स और जॉइंट्स है, दिस विल बी वीक, ठीक है। तो इसको वीक है, मतलब ये जो गैप है यहाँ पे, ये वाला सेक्शन, इट इज वीक इन स्ट्रक्चर। तो क्या हो जाएगा, वी नीड टू गिव सम रेनफोर्समेंट, हमको एक्स्ट्रा उसको सपोर्ट देना चाहिए, ठीक है। तो रेनफोर्समेंट का मतलब है यहाँ पे क्या, वी हैव टू प्रोवाइड सम स्टील बार्स, राइट। तो वो बार हम यहाँ पे जॉइंट्स में दे देंगे, ठीक है। तो जॉइंट्स में जो बार देता है, depending upon the types of the joints, there are two types of the bars or the reinforcement we can say, ठीक है, which is provided in this joint। अगर ये तुम्हारा longitudinal joint है, ठीक है, सॉरी ये तुम्हारा ट्रांसवर्स जॉइंट है, तो ये ट्रांसवर्स जॉइंट में हमको क्या देना है, जो रेनफोर्समेंट हम दे रहे हैं, हम एक सर्टेन डेप्थ में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो दिस रेनफोर्समेंट आर नोन एज दी, अच्छा बोलो ये क्या बार है, ठीक है। और ये जो तुम्हारा सपोज ये ग्रीन कलर का जो है, सपोज तुम्हारा ये है लॉन्गिट्यूडनल बार, ओके, दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल बार। तो लॉन्गिट्यूडनल बार में हमको रेनफोर्समेंट देना पड़ता है, जैसे यहाँ पे दिया हमने रेनफोर्समेंट, ठीक है, मतलब रेनफोर्समेंट ऐसा ऐसा करके हमने अंदर में दे दिया है, बाहर से नहीं, ये अंदर की तरफ होगा। नाउ टेल मी व्हाट आर दिस बार एंड व्हाट आर दिस बार नोन एज। दो टाइप का बार तुम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हो पेमेंट डिजाइन में, रिजिड पेमेंट डिजाइन में, वी हैव टू डिजाइन दोज बार्स आल्सो। ओके, एक होता है कि जो जॉइंट है ट्रांसवर्स जॉइंट, उसमें जो बार देते हैं उसका डिजाइन करो, एक है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, उसमें जो बार देते हैं उसका डिजाइन करो। डिजाइन मतलब ये लेंथ कितना होना चाहिए, व्हाट इज द एरिया, मतलब क्रॉस सेक्शनल डायामीटर कितना होना चाहिए, ठीक है, एंड व्हाट इज द स्पेसिंग, मतलब कितना दूर दूर ये वाला प्लेस करेंगे, व्हाट इज द स्पेसिंग, ये स्पेसिंग कितना है, कितना दूर दूर हम ये बार को प्लेस करेंगे। ओके, दैट इज द स्पेसिंग ऑफ द बार्स, ठीक है। अब बोलो ये ब्लू कलर का बार का एक नाम है, पिंक कलर का बार का एक नाम है। मैम ब्लू टैग डुअल बार।
यस, ब्लू बार इज द डॉवल बार। ओके, ये जो ब्लू बार है, दीज आर दी डॉवल बार। ओके, इसको हम लोग बोल सकते हैं लोड ट्रांसफर बार। ये याद रखना, ये क्योंकि गाड़ी कहाँ से जाता है, गाड़ी गाड़ी तुम्हारा यहाँ से इस वाले जॉइंट के ऊपर से होके जाता है, ठीक है। सो वी हैव टू ट्रांसफर द व्हील लोड फ्रॉम दिस स्लैब टू द एडजेसेंट स्लैब। तो कौन ट्रांसफर कर रहा है, ये बार्स ट्रांसफर कर रहा है। ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं लोड ट्रांसफरिंग बार ऑल्सो। ओके, अगर एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि कौन सा बार तुम्हारा रोड को ट्रांसफर करता है इन अ रिजिड पेवमेंट, अगर टाई बार है या डॉवल बार है तो डॉवल बार बेसिकली। ओके, एंड ये जो बार है दीज आर द टाई बार्स। ओके, ये जो पिंक कलर का बार है दीज आर द टाई बार्स। व्हाई टाई बार, बिकॉज दीज आर यूज टू टाई द स्लैब, मतलब दो स्लैब को एक ही जगह पर अटैच करके रखने के लिए, जिससे डिस्प्लेसमेंट मतलब डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट ना हो। डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि अगर यहाँ पे व्हील आ रहा है, यहाँ पे गाड़ी है, यहाँ पे गाड़ी नहीं, तो ये नीचे धस जाएगा, ठीक है, और ये ऊपर ही रह जाएगा। अगर यहाँ पे गाड़ी है तो ये नीचे धस जाएगा, ये ऊपर ही रह रहा है, अपनी जगह पर ही रह रहा है, तो क्या है, डिफरेंशियल डिफ्लेक्शन हो जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वी आर प्रोवाइडिंग दी टाई बार्स। ओके, तो ऐसा कैसे, नॉट ओनली द डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट बट ऑल्सो द, देखो गाड़ी बार बार आने से क्या हो जाता है, यहाँ पे कैम्बर देते हैं, राइट, एक स्लोप देते हैं, तो इससे ये हो सकता है कि ये वाला स्लैब इस तरफ चला जाए, ये वाला स्लैब इस तरफ चला जाए। उन दोनों को एक साथ जगह पर अटैच करके रखने के लिए वी आर प्रोवाइडिंग द टाई बार्स। ओके, बट द लोड ट्रांसफर बार इज व्हाट, डावल बार्स। ठीक है, इसका भी वही स्पेसिंग कितना है, लेंथ कितना है, डायमीटर कितना है, ये सब हमको डिजाइन करना है। ओके, सो दिस कम्स अंडर द रिजिड पेवमेंट डिजाइन। बट बिफोर दैट मेन क्या है, थिकनेस डिजाइन करना है। ठीक है, तो थिकनेस के लिए हमको स्ट्रेसेस वी हैव टू कंसीडर। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया है, ये है तुम्हारा डावल बार, ये है ये तुम्हारा टाई बार्स। ओके, सी टॉप व्यू से आ रहा है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक, तो ये पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक इज लॉन्गिट्यूडनल बार। तो लॉन्गिट्यूडनल बार्स में जो सॉरी लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में जो बार लगता है दैट इज कॉल्ड टाई बार, एंड द जॉइंट्स विच आर perpendicular to the direction of the traffic are known as the transverse joint। और transverse joint में हम जो reinforcement देते हैं, these are the load transfer bar which is also known as the dowel bars। okay, तो ये डिटेल्स में हम पढ़ेंगे कि कितना टाइप्स ऑफ जॉइंट्स है, ये सब भी पढ़ेंगे। नाउ बिफोर दैट, ओके, दिस टॉपिक मस्ट बी अंडरस्टूड बाय यू, बिकॉज क्योंकि व्हेन वी कैलकुलेट द स्ट्रेसेस, यहाँ पे मेनली फॉर पेवमेंट डिजाइन, रिजिड पेवमेंट डिजाइन, द स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए एक क्या बोलते हैं, इक्वेशंस है विच इज नोन एज द वेस्टरगार्ड इक्वेशन। ओके, ये है वेस्टरगार्ड इक्वेशन, दीज आर द वेस्टरगार्ड इक्वेशंस। ओके, मेनली तीन ठो वेस्टरगार्ड इक्वेशन है डिपेंडिंग अपॉन द लोडिंग, पोजिशन ऑफ द लोडिंग। ओके, so depending on the position of the loading there are three equations। so in order to calculate these values of stresses, first we need to identify what are the position, critical positions कौन कौन सा consider करना है, and different ये जो terminologies है ना, L B H, ये सब क्या है, so what are these terminologies, ये हमको understand करना जरूरी है। ओके, तो ये फर्स्ट आता है तुम्हारा डिजाइन पैरामीटर्स इन रिजिड पेवमेंट। तो फर्स्ट है एक देखना, के वैल्यू आता रहता है। ओके, दैट इज कॉल्ड द मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। वहां पे क्या होता था तुम लोग का, ई एस, सबग्रेड का इलास्टिसिटी हमको पता रहता था, यहाँ पे क्या पता रहना चाहिए रिजिड के लिए, के वैल्यू। ओके, मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, एंड इट इज गिवन एज पी। स्ट्रेस कितना डिफ्लेक्शन के लिए स्ट्रेस चाहिए, 0.125 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन के लिए कितना स्ट्रेस डेवलप होता है। ठीक है, इसका रेशियो को हम के बोलते हैं, वेयर डेल्टा इज डिफ्लेक्शन एंड पी इज प्रेशर। ओके, दूसरा है रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस का फॉर्मूला ये तुमको हमेशा याद रखना है, प्लीज रिमेंबर, एमसीक्यूज में आएगा। ओके, तुमको ऑल डाटा दे विल गिव यू एंड दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट द एल, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, एंड दिस इज द इक्वेशन। तो यहाँ से जो भी एल का वैल्यू आएगा इट इज द सेंटीमीटर, ये यूनिट इज इन सेंटीमीटर। अब ये ई एच ये सब क्या है, ई इज व्हाट, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट। प्लीज रिमेंबर ये सबग्रेड का इलास्टिक नहीं है, ये किसका है, तुम्हारा कंक्रीट का, कंक्रीट स्लैब का इलास्टिक मॉड्यूलस है। ठीक है, एच इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब। ठीक है, यूनिट याद रखो, यूनिट। इफ ई इज नॉट गिवन, this is the value you must consider, 3 into 10 to the power 5 kg per centimeter square. Okay, assumption.
स्लैब थिकनेस इन सेंटीमीटर, के है वही मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, and mu is Poisson's ratio. If not provided, assume it as 0.15. ठीक है, तो ये दिया गया है एंड द फॉर्मूला इज 1/4. यू कैन नोट इट डाउन, अभी जो एक प्रॉब्लम कराएंगे उसमें ये लगेगा. ओके, सो ई एच क्यूब बाई 12k 1 माइनस म्यू स्क्वायर. ओके, सो दिस इज द रिलेटिव स्टिफनेस. अब आता है पोजिशन, कहाँ कहाँ पे हमको चाहिए पोजिशन. देर आर मेनली 3 पोजिशंस, क्रिटिकल पोजिशंस. ठीक है, लोडिंग कंडीशंस कौन कौन सा है. एक है इंटीरियर लोडिंग, एनीवेयर इनसाइड द स्लैब अदर देन कॉर्नर एंड एज. ठीक है, कॉर्नर मतलब यहाँ पे वर्टेक्स के आसपास में, ये है कॉर्नर पोजीशन. एज मतलब है यहाँ पे कॉर्नर और इंटीरियर को छोड़ के यहाँ पे साइड पे. ठीक है, एंड इंटीरियर इज अदर देन कॉर्नर्स एंड एज एनी पोजीशन, उसको बोलते हैं इंटीरियर. ठीक है, so these are the three critical position, or we can say the maximum stresses where it is occurred. Okay, maximum stresses are induced by the application of a given traffic load is dependent upon the location, and these are the three critical location: interior, edge, corner, IEC. ठीक है, अब देखो और एक टर्म आता है इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन बी. ये बी एक फॉर्मूला में देखो बी 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 दिया रहता है. ओके, इन द फॉर्मूला यू विल बी सीइंग दिस बी. तो उसका भी एक दो कंडीशन है. फर्स्ट वी हैव टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन. अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है देन बी का फॉर्मूला ये है. ठीक है, यहाँ पे एच क्या था, थिकनेस. ए हियर इज द कॉन्टैक्ट रेडियस, ये याद रखना, कॉन्टैक्ट एरिया का रेडियस ए. ओके, और इफ इट सेटिस्फाई दिस कंडीशन देन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा. ये तुमको याद रखना. इफ लेस देन इक्वल्स टू 1.724 एच, दिस इज द फॉर्मूला, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 1.724 एच देन बी इक्वल्स टू ए. ओके, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा रहता है कि कहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होता है फ्रॉम द कॉर्नर. अगर कॉर्नर में लोड दिया गया है तो यहाँ से किस जगह पे तुम्हारा मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप हो रहा है. दैट डिस्टेंस इज गिवन बाय कैपिटल एक्स. तो एक्स का फॉर्मूला ये है. ओके, 2.58 अंडर रूट ए इंटू एल. ठीक है, एल इज रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, ए इज कॉन्टैक्ट रेडियस. ठीक है, इन सेंटीमीटर आएगा. ओके, अब आते हैं स्ट्रेसेस. सी स्ट्रेसेस वी नो देर आर हाउ मेनी स्ट्रेसेस. कहाँ कहाँ से आता है, हम बोले थे ड्यू टू लोडिंग. लोडिंग मीन्स ड्यू टू व्हील लोड एंड ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन. ओके, लोडिंग के लिए क्रिटिकल पोजीशन कौन सा है, इंटीरियर, एज एंड कॉर्नर. ओके, बट टेम्परेचर वेरिएशन के लिए क्या आता है, ड्यू टू एक होता है कि सीजन वाइज में जो टेम्परेचर का वेरिएशन है, टेम्परेचर डिफरेंस है, उसकी वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप होता है. एंड अनदर इज ड्यू टू ड्यूरनल स्ट्रेस, क्या है टेम्परेचर वेरिएशन. ड्यूरनल का मतलब है डे एंड नाइट के बीच में डिफरेंस. ठीक है, एक है डे या नाइट में अगर टेम्परेचर का ये कंडीशन है तो कैसा स्ट्रेस डेवलप होता है. एक होता है कि सीजन में चेंज होने से मैक्सिमम स्ट्रेस या जो भी है डिफरेंशियल स्ट्रेसेस, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर वेरिएशन होने से क्या स्ट्रेस डेवलप होता है. ओके, सो जो डे वाइज में होता है, मतलब डे और नाइट. ठीक है, अगर बोलेगा डे में क्या होगा, नाइट में क्या होगा, सो दैट स्ट्रेस इज वार्पिंग स्ट्रेस और कर्लिंग स्ट्रेस. ये याद रखना, वार्पिंग स्ट्रेस और कर्लिंग स्ट्रेस. ओके, and which is due to seasonal variation in temperature, that is called the frictional stress. अब देखो यहाँ पे क्या टेम्परेचर वेरिएशन बोला है, that means there will be difference in the temperature. अब हमको देखना है in this case which difference we have to consider, difference in temperature we have to consider, and in this case कौन सा difference in temperature we have to consider. ठीक है, एक लेते हैं, suppose this is your slab. okay, suppose this is your slab. Sorry, ठीक है, यहाँ पे बना देते. चलो, सी सपोज ये तुम्हारा स्लैब है, हम एक स्लैब पकड़ के कर रहे हैं. ओके, एक टेम्परेचर डिफरेंस हम बोल रहे थे कि डे या नाइट में होता है. अब डे और नाइट में कैसा टेम्परेचर डिफरेंस आता है, इन द स्लैब, इनसाइड द स्लैब देयर विल बी क्या है, एक होगा तुम्हारा, एक है तुम्हारा सपोज बोलेंगे टॉप लेयर. ठीक है, ये है टॉप लेयर,
और एक बोलेंगे हम सपोज बॉटम लेयर, ठीक है, सपोज दिस इज द बॉटम लेयर। अब बोलो ये सपोज तुम्हारा टॉप लेयर का है, हम बोलेंगे टी टॉप, ओके सॉरी दिस इज टी बॉटम, टी बी हम इधर लिख रहे हैं, ओके, एंड दिस इज योर टी टॉप, टेम्परेचर एट द टॉप लेयर टी, ओके, एंड दिस इज टी बी, ओके। नाउ टेल मी ड्यूरिंग डे, एकदम मिड नून, नून में, एकदम आफ्टरनून में, ठीक है, ड्यूरिंग डे कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, टॉप का ना बॉटम का, डे में टॉप। टॉप, राइट। सो एट डे क्या होता है, डे के टाइम में तुम्हारा क्या होता है, दिस विल बी ग्रेटर देन टी टी, सॉरी, दिस विल बी ग्रेटर देन टी बी, राइट, दिस इज फॉर डे टाइम। एंड ड्यूरिंग नाइट क्या होता है, बॉटम, ड्यूरिंग नाइट में क्या होता है, बॉटम में बेचे हुए हैं। बॉटम में बेसी, हाँ, बॉटम में बेसी, राइट। सो टी बी विल बी ग्रेटर देन टी टी ड्यूरिंग नाइट, क्यों, बिकॉज नाइट में क्या होता है, ये यहाँ पे जो भी टेम्परेचर है इट विल स्टार्ट टू रिलीज, राइट, थ्रू आउट द जो गर्म हुआ तो वो धीरे धीरे रिलीज होना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले कौन सा ठंडा होगा, ऑब्वियसली टॉप वाला लेयर ठंडा होगा, फिर स्लोली स्लोली बॉटम वाला लेयर ठंडा होगा। तो बॉटम लेयर का टेम्परेचर इन द नाइट क्या होता है, टॉप लेयर से ज़्यादा गर्म होता है, मतलब टॉप लेयर का टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा होता है कंपेयर टू द बॉटम एट नाइट। वेरएज डे में उल्टा होता है, डे में ये ज़्यादा हीट, इसको ज़्यादा हीट मिल रहा है तो ये ज़्यादा गर्म हो रहा है, और ये वाला स्लोली हीट हो रहा है तो ये कम हीट हो रहा है, ठीक है। सो दिस टेम्परेचर डिफरेंस between the top layer and the bottom layer will cause stress inside the pavement, okay, slab. That stress is known as the warping stress or curling stress, okay। तो ये है warping क्या है, due to temperature variation between top and bottom layer of the slab at day or at night time, इसलिए ड्यूरनल वेरिएशन भी हम बोल रहे थे, ठीक है। और सीजन का वेरिएशन क्या होता है, सीजन का वेरिएशन होता है तुम्हारा हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है, हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर का बाहर का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कैपिटल टी अगर है, ठीक है, और ये वाला स्लैब का सपोज टेम्परेचर स्मॉल टी है व्हेन इट वाज कंस्ट्रक्टेड और व्हेन इट वाज लेड, ठीक है, इसका टी डिग्री सेंटीग्रेड है, और हॉटेस्ट का है तुम्हारा बाहर का एटमोस्फेयर का सपोज कैपिटल टी डिग्री सेंटीग्रेड। सो व्हाट इज द डिफरेंस, ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा टेम्परेचर होता है कंपेयर टू दिस वन, टी विल बी ग्रेटर, ठीक है। तो ये जो हो रहा है कि बाहर का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की वजह से ड्यूरिंग हॉटेस्ट मंथ हम बोल रहे हैं, विंटर का बात नहीं कर रहे, समर का बात कर रहे हैं, ओके। तो क्या होता है कि टेम्परेचर वेरिएंस हो रहा है विद इन द स्लैब एंड द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। तो उस डिफरेंस की वजह से what is the stress which will be developed in the slab, that is called the frictional stress, okay। so ये क्या है, this is due to temperature difference between the atmosphere and the slab itself, ठीक है। और ये वाला है तुम्हारा इन मतलब विद इन द स्लैब, टॉप और बॉटम दोनों लेयर के बीच का टेम्परेचर जो डिफरेंस है उसकी वजह से जो स्ट्रेस होता है दैट इज वार्पिंग स्ट्रेस। इज इट क्लियर, अब वार्पिंग और फ्रिक्शनल स्ट्रेस में क्लियर है तो अच्छा। सो एमसीक्यूज अगर आएगा तो लिख सकते हो, राइट। तो दिस हैपेंस एट डे और नाइट, और दिस हैपेंस ड्यूरिंग विंटर और समर, ऐसा बोलेगा, समर विंटर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ये वाला हम बाद में पढ़ लेंगे फॉर्मूलाज क्या है। सो आज का टॉपिक क्या है तुम्हारा, स्ट्रेसेस इन रिजिड पेमेंट ड्यू टू व्हील लोड, ओके, एंड इट इज गिवन बाय द इक्वेशन वेस्टरगार्ड इक्वेशंस, ओके। सो ये है वेस्टरगार्ड इक्वेशंस। तो दीज आर द इक्वेशंस, हम इसको क्या एक्सप्लेन करेंगे ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ओके। इन योर आईआरसी देयर इज सम मॉडिफिकेशंस, इसको ही मॉडिफाई करके इक्वेशंस दिया गया है आईआरसी 58 में, ओके। बट द फर्स्ट जो किया था डिराइव, दिस वाज द इक्वेशन व्हिच वाज डिराइव बाय वेस्टरगार्ड, इसको भी मॉडिफाई करके आया है तुम्हारा बाद में, बट जो इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए ये वेस्टरगार्ड इक्वेशन, दीज आर द थ्री इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या क्या है, कैपिटल पी इज द व्हील लोड, H is the thickness of the slab, and please remember in rigid pavement there are several equations which
हैज बीन डिराइव्ड, ठीक है, कैसे डिराइव हुआ वो भी हम बोलेंगे। तो वहां पे कुछ कुछ यूनिट होगा कि लगेगा कि यहाँ पे सेंटीमीटर है लेकिन यहाँ पे मीटर दिया है, ठीक है, तो वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमने जो डिराइव किया है यहाँ पे मीटर कंसीडर करके डिराइव किया है, जिससे अल्टीमेटली सेंटीमीटर में आंसर आएगा। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर द यूनिट्स। तो यहाँ पे जो भी यूनिट्स हम देंगे वो थोड़ा याद रखना है। ओके, क्योंकि अच्छा यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी हम सेंटीमीटर ही दे देंगे, ऐसा नहीं है, किसी किसी में शायद किसी का वैल्यू मीटर में भी है, तो मीटर में हमको रखना है क्योंकि वैसे डिराइवेशन किया है। ओके, सो P है लोड, व्हील लोड इन केजी, ठीक है। H है स्लैब थिकनेस इन सेंटीमीटर, A है कॉन्टैक्ट रेडियस इन सेंटीमीटर, L का वैल्यू हमने पता है क्या है, रिलेटिव स्टिफनेस का रेडियस सेंटीमीटर में है, कैसा है, EH³ बाई 12 के 1 माइनस म्यू स्क्वायर टू द पावर 1/4, ये याद रखना है। ओके, B इज रेडियस ऑफ रेजिस्टेंस सेक्शन, इसका दो कंडीशन है, फिर A इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1.724 H या ग्रेटर देन 1.724 H, उस हिसाब से B का वैल्यू निकालना है, बाकी तो सब सेम है, ठीक है। these are the equation, please note it down, ये सब इक्वेशन लिखो तुम लोग, अभी लिखो। ম্যাম এটা আগে করিয়েছিলেন না, মানে হ্যাঁ, পেভমেন্ট ডিজাইন ইয়েস আগে ছিল, ইয়েস, এই ছিল ফর্মুলাগুলো তো তো, ম্যাম লেখা আছে। লেখা আছে, এটা তো ছিল, আমি তো হ্যাঁ বলেছি তোমাদের, তার জন্য তো এটা সাবজেক্টটা ইজি লাগবে, বাট তোমরা তো মানে সবকিছু এইভাবে রেসপন্স দিচ্ছ মানে যে নতুন পড়ছো, এগুলো অনেক না আগে ম্যাম, আমিও অনেকক্ষণ দেখে দেখে ভাবছি ম্যাম একই জিনিস কেন পড়াচ্ছেন আপনি। কিছু করার নেই, একই টপিক আছে তোমাদের। হ্যাঁ ম্যাম পড়ান, কারণ এমনিও ভুলে গেছি আগেরগুলো। ঠিক আছে, এইগুলো লিখেছো সবাই? হ্যাঁ ম্যাম লেখা আছে। হ্যাঁ, তো যাদের হয়নি, লেখা হয়নি বা কিছু হয়নি, তারা আমাকে বলো ক্যালকুলেট দিস ভ্যালু, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस निकालो। रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस फॉर अ 20 सेंटीमीटर थिक स्लैब with E equals to this much, position ratio equals to 0.15। in many question they will not give you E का वैल्यू भी नहीं दिया, position ratio भी नहीं दिया, then you have to assume, okay, this much। E is the elastic modulus of cement concrete which is 3 into 10 to the power 5 kg per centimeter square, position ratio is mu 0.15, ठीक है। resisting on a subgrade having modulus of subgrade reaction कितना है, के का वैल्यू ये, ओके, 5 kg पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये 5 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। इस इसमें से कौन सा होगा, प्लीज नोट इट डाउन। ई है इतना, म्यू है 0.15, एच इज 20 सेंटीमीटर, के इज 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है जे लिखेছো बोलो तो, फॉर्मूला की एल, एल का फॉर्मूला क्या है, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस निकालने बोला हुआ है, ई एच क्यूब बाई 12 के 1 माइनस म्यू स्क्वायर टू द पावर 1/4, এটাই তো, এটা ছিল EHQ 12 के 1 minus mu square 1/4। so please calculate L value, L will be in centimeter, okay। আচ্ছা এত কম অ্যাটেন্ডেন্স কেন আবার, আগেরবার তো বেশ ভালো ছিল। তোমাদের কি রুটিন পাওনি তোমরা, নতুন রুটিন? হ্যাঁ ম্যাম পেয়েছি। আজকে ছিল তো ক্লাস, কালকের ক্লাসটা আজকে দিয়ে দিয়েছে আমাকে। कौन सा ऑप्शन सही है, 1 2 3 4? ক্যালকুলেট করছো সবাই, কে কে আছো? শুভজিৎ, so what is the value? ম্যাম অ্যাপ্রক্স 80।
হ্যাঁ অ্যাপ্রক্স মানে yes 79.89 আসছে, हाँ তো ওটাকে 79.89 80। अप्रॉक्स 80 ओके कुछ नहीं सब्स्टिट्यूट कर दो सिंपल ম্যাম ভেরি গুড বলুন। वेरी गुड থ্যাংক ইউ ম্যাম। হ্যাঁ আচ্ছা এটা করো তো তাহলে এটা না দেখে করো এই খাতা না দেখে এটা করো ঠিক আছে তাহলে एक्सीलेंट বলবো আমি क्वेश्चन क्या है कैलकुलेट द स्ट्रेसेस एट इंटीरियर एज एंड कॉर्नर ठीक है रीजंस ऑफ सीसी पेवमेंट यूजिंग वेस्टरगार्ड इक्वेशन यूजिंग द फॉलोइंग लोड चलो हम इधर लिख देते हैं क्या क्या दिया है P is 5100 okay kg 0 kg okay kg में लिख देते हैं kg इलास्टिक मॉड्यूलस E is given नहीं दिया तो 3 into 10⁵ kg per centimeter square okay दूसरा है थिकनेस H पेवमेंट थिकनेस is 18 centimeter मॉड्यूलस ऑफ ग्रेड रिएक्शन is K 6 kg per centimeter cube यूनिट नहीं लिख रहे हैं ओके कॉन्टैक्ट रेडियस इज A 15 सेंटीमीटर बाकी कुछ नहीं दिया है तो वी हैव टू एज्यूम ओके जैसे म्यू का वैल्यू एज्यूम कर दो 0.15 ओके नाउ कैलकुलेट एस आई विथ द हेल्प ऑफ वेस्टरगार्ड इक्वेशंस एस आई एस ई एस सी निकालो तो प्लीज कैलकुलेट एस आई see 0.316 P ম্যাম is এল হচ্ছে 510 70.6। 70.6 এটাই কি সবার আসছে এটা ফার্স্ট অফ অল টেল মি ম্যাম হোয়াট ইজ এল, ম্যাম এল বললাম 70.6। এন এন এল 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 স্যার ম্যাম, ও প্রথমে আচ্ছা এল ফার্স্টে এল যেটা এল বের। এল হ্যাঁ এল হ্যাঁ এল আচ্ছা আচ্ছা এল ইজ 70.6 এটা কি আসছে সবার হ্যাঁ ম্যাম এলটাই আসছে। सेंटीमीटर राइट वेरी गुड अब बी निकालना है बी के लिए वी हैव टू चेक दिस वन सी बी फॉर बी ये चेक करना है कौन सा केस आएगा केस 1 या केस 2 ए का वैल्यू है 15 एंड 0.1724 एच का वैल्यू कितना आएगा 1.724 ম্যাম इंटू 31। एच है 31 আছে। एच इज 18 हाँ हाँ 18 13 ना this h this value is 13 and this value is 15 so ये ম্যাম এইচ satisfy টু नहीं 18। सॉरी এইচ ना 1.724 ना ओ सॉरी सॉरी না सॉरी না এইচটা ম্যাম 18 হবে তো। 31 सॉरी ये 31 है दिस इज 31 ठीक है so 15 is less than 31 satisfy so we have to use this equation for calculating b तो b कितना आ रहा है কে লিখেছে কিছু লিখেছে ফোন করলো আওয়াজ একটা so b is how much ম্যাম 14। 14 এটা কি সবার 14 আসছে b এর ভ্যালু so b is 14 l is 70.6 b is 14 सेंटीमीटर ठीक है तो सिंपल अब यहाँ पे पुट कर दो सब तो आ गया सी यहाँ पे आ जाएगा p is 5100 h is 18 log 10 बेस है l is 70.6 b is 14 plus 1.069 तो ये कितना आएगा kg per centimeter square this is what this is stress right stress in interior loading stress due to interior loading so unit will be kg per centimeter square okay so unit will be kg per ম্যাম centimeter 19.3 আসছে। 19.3। 19.3 वेरी गुड ठीक है वेरी गुड अब वैसे एस ई निकालो स्ट्रेस ड्यू टू एज लोडिंग
বাকি করছো কি আচ্ছা আর পুলক, প্রতীক, মনিরুল, শুভজিৎ, ম্যাম SE টা হচ্ছে 28.54। এসই হ্যাঁ SE 28.54। 54। वेरी गुड। अब ये कितना है, ये वाला, दिस वन, दिस इज एससी, एसई, ये है एसई, दिस इज एसआई, तो ये कितना होगा एससी, मैम 24.3। 24.3। ठीक है, तो देखो एक है 19.3, एस ई है, एस ई है 28.54 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एस सी इज 24.3। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि एस ई इज ग्रेटर। ठीक है, तो ये बाद में लगेगा, देखना कि हम लोग एज लोडिंग को ही ज़्यादा कंसिडर करेंगे इन फ्यूचर, वी विल सी कि एज का लोडिंग हम लोग ज़्यादा कंसिडर करके डिजाइन करेंगे। ओके, IRC 58 में एक है, तो एज वाला लोडिंग देखो ज्यादा आ रहा है, मतलब एक्चुअली स्ट्रेस ड्यू टू लोडिंग ज्यादा रहा है। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, हमको कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन मतलब विंटर के टाइम में अलग सा स्ट्रेस आएगा, ठीक है, समर के टाइम में अलग सा आएगा, तो टेम्परेचर को भी ऐड करना है, टेम्परेचर स्ट्रेस भी ऐड करना है, सिर्फ लोडिंग तो नहीं आएगा वहाँ पे, there will be temperature variation also, right? So we have to add those temperature stress also. Then comes the combination कि winter के टाइम में कैसा combination आएगा, summer के टाइम में कैसा combination आएगा, winter day में कैसा है, winter night में कैसा है। ठीक है, so all this combination is important that we will learn in our next class. okay, तो यहाँ पे calculate हमने कर दिया है। अच्छा, उससे अब ये वाला लास्ट वाला देख लेते हैं, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कॉम्बिनेशन में ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। इन आवर केस टेल मी, concrete sim we are designing for cement concrete, stresses in cement concrete, right? Now tell me, compressor stress अच्छा है, compressive stress अच्छा है ना कि टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब कंक्रीट इज वीक इन विच स्ट्रेस, टेंसाइल और टेंसाइल। टेंसाइल, राइट? तो टेंसाइल को हम लोग बोलेंगे कि नहीं होना चाहिए, टेंसाइल इज एक्टिंग एज अ नेगेटिव स्ट्रेस। ओके, तो टेंसाइल को हम लोग नेगेटिव स्ट्रेस कंसिडर करेंगे, लेकिन मतलब कि जब भी टेंशन आएगा हम उसके सामने माइनस कर देंगे, मैग्नीट्यूड के सामने माइनस वाला साइन आएगा। ओके, और कंप्रेसिव मतलब है ये इजीली टैकल हो जाएगा, तो इसको हम पॉजिटिव स्ट्रेस भी कंसिडर कर सकते हैं, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा दैट वी विल टेक एज अ पॉजिटिव। अब देखो दो केस है, एक है एज और इंटीरियर में ये कैसा लोड डेवलप होता है, मतलब कैसा स्ट्रेस डेवलप होता है। सपोज द विल लोड इज एट द एज और एट द इंटीरियर, ठीक है, एज या इंटीरियर में अगर लोड रहेगा, बीचों बीच, स्लैब के बीचों बीच या एज में अगर आएगा, सो इट विल बेंड लाइक दिस, स्लैब विल ट्राई टू बेंड लाइक दिस बिकॉज ऑफ द लोडिंग। ठीक है, तो बेंड जब होता है तो भीतर के स्ट्रेस में क्या आ रहा है, अंदर के ऊपर के टॉप से टॉप सर्फ मतलब टॉप लेयर में कंप्रेशन। कंप्रेसिव और नीचे टेंशन, राइट? टेंशन स्ट्रेस, टेंशन आ रहा है, ऊपर कंप्रेशन आ रहा है। ठीक है, ये याद रखो। एंड व्हेन द सेम लोडिंग इफ इट मूव्स एट द कॉर्नर, तो कॉर्नर में देखो ऐसा होने का केस हो जाता है, इससे क्या हो जाता है, टॉप में टेंशन आ जाएगा, टेंशन, ठीक है, और नीचे कंप्रेशन। So this one you have to remember when we are determining the combination of stress, जब करेंगे तो कब पॉजिटिव आ रहा है कब नेगेटिव आ रहा है वो हमको कंसिडर करना है। ओके, एंड whenever we do combination we will try to take the tension वाला ही, क्योंकि it is weak in tension, तो टेंशन जहाँ पे होता है वो वाला स्ट्रेस हमको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेस वो इजीली टैकल कर लेगा, लेकिन टेंशन जहाँ पे आता है वहाँ पे वो टैकल नहीं कर पाता है। सो इन दैट केस whenever we do combination, मतलब ड्यू टू लोडिंग, ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक है, स्ट्रेसेस जो भी कम्बाइन करेंगे, तब हमको जनरली टेंशन वाला जो स्ट्रेस है उसको ऐड करते करते जाना है या सब्ट्रैक्ट करके, मतलब सब्ट्रैक्ट, बेसिकली सब्ट्रैक्ट करते करते जाना है। ओके, सो दिस थिंग वी हैव टू रिमेम्बर कि कहाँ पे कंप्रेशन होता है, यहाँ पे ऊपर में टॉप में कंप्रेशन,
बॉटम में टेंशन व्हेन इट इज इंटीरियर और एज, एंड व्हेन इट इज एट कॉर्नर टॉप में टेंशन नीचे कंप्रेशन। ओके, ये वाला तो कर दिया हमने, दिस इज ऑल्सो डन। अच्छा सेम ये जो देखो 19, 28, 24। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट दिस वन, ये जो है ड्यू टू टेम्परेचर स्ट्रेस। ठीक है, दो टाइप का होगा, वार्पिंग, फ्रिक्शनल। देन वी विल गो फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस। ओके, सी दिस थिंग आई हैव ऑलरेडी टॉट टू यू इन द previous semester, मतलब इन 6th सेमेस्टर हाईवे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जो था तुम लोग का पेवमेंट डिजाइन, एक अलग सा मॉड्यूल था। तो आई थिंक इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, तो इतना टफ नहीं होगा। ওকে, তাহলে আজকে এটুকুই থাক, ঠিক আছে? ম্যাম বলছি এক্সামে কি আপ টু এই অবধি থাকবে? না না, এক্সামে হচ্ছে লাস্টে বার্মিস্টার যেটুকু করিয়েছি, ঠিক আছে? আর আমি যে অ্যাসাইনমেন্টটা দিয়েছি সেগুলো একটু ভালো করে দেখে যাও, ঠিক আছে? ঠিক আছে ম্যাম।